Okay, so we'll continue our last topic. Okay, so we'll quickly revise कि क्या क्या अभी तक हमने complete किया है. Okay, you can also help me in that. Our next unit, okay, unit 2 is actually the applications of partial derivative. ठीक है, so this is actually the application of partial derivative and the first application. Okay, what is that first application? Yes, what is our first application? कौन सा टॉपिक हमने Jacobian. 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 So Jacobian is actually one of the application of your partial derivative. There is one more application that maybe today or tomorrow we'll start that second application, which is the dependence, functional dependence and independence. This is also one of the application of this partial derivative. Okay, so we'll stick to the Jacobian only. So in this Jacobian, there are two methods. Okay, one we can call it as for explicit function. Sir, तुम्ही screen share नाही Okay, केली sir. sorry. Yes. Yes, let me keep this. Thank you for this. Okay, now tell me, is this visible? Yeah. Okay. Yes sir. Okay, so unit 2, application of partial differential equation. Okay, we already started this first application, which is Jacobian. Okay, and later on we'll see the next application, which is functional dependence and independence. That is also very similar to your dependent and independent vectors that you already learned in your first course of mathematics. Okay, so in this first application, okay, actually there are two formulas, you can say. Okay, one is for explicit function and second is for implicit function. ठीक है, इतना ही है इस टॉपिक में. You have to just remember these two formulas. And sorry, there is one more application before this. That is, you can calculate the partial derivative also. You can calculate partial derivative also. Okay, we'll see one by one. Okay, सारे application में देखने ही है. Okay, so for explicit function, just let me give the definition quickly. If u is a function of x and y, okay, so it is defined explicitly, and v is a function of say x and y. So basically u and v, these both functions are the functions of x and y. So we can calculate, in this particular case, we can calculate Jacobian of uv with respect to xy. Okay, and what is that definition? Can you just tell me quickly what is our definition? So it is actually a determinant. So remember, Jacobian it's actually Jacobian is nothing but one specific determinant. Okay, so what is in the first row? Ux by x. Ux and uy, and then vx and Vx and vy. Okay, so this definition is only for explicit function. Okay, if मतलब यही पे आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपके पास u इन टर्म्स ऑफ x एंड y, v इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो ही आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हो. ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ दिस. तो वो एक क्वेश्चन आया था कि व्हाई दिस इनवर्स इज एग्जिस्ट, बिकॉज वी आर नॉट इन नाउ पार्शियल डेरिवेटिव. ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट है, मतलब आप रियल नंबर में हो, रियल नंबर में इनवर्स डिफाइन होता है. ठीक है, सो एक्सप्लिसिट का यूज करके आप इसका रिवर्स पार्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो. दैट इज नथिंग बट अ जे डैश. ठीक है, एंड विच इज जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यूवी. ये हमारा इनिशियल पार्ट था, एंड वी already completed all the examples on this j into j dash and this explicit function. Then our next part is the implicit function. So implicit function, we have not given this explicit form u equal to xy. इस फॉर्म में नहीं रहता आपके पास function. So we have given an equation like this. So let us consider your first equation as f1, which is the function of uv xy. Okay, combination of all four variables. Okay, consider the one more equation, that is f2, which is also the combination of these all four variables. Okay, let us discuss only for this f1 and f2. So in this case also you can calculate Jacobian of uv with respect to xy, and also you can calculate the reverse part of this, that is Jacobian of xy with respect to uv. ये दोनों वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, so can anyone tell me this formula for first case? -1 square. Okay, -1 Tab of f1 f2. Jacobian of f1 f2. Very good. With respect to x y. Okay, and
here One Jacobian of F1 and F2 with respect to UV. UV. Okay, so it is very easy to remember. रिवर्स रोल होता है, UV नीचे जाता है, XY ऊपर जाता है. ठीक है. In a similar way, you can write formula for this. ठीक है. So I will not write that formula again. And if I take F3 here, if I take one more equation, then it just become -1 cube and Jacobian of F1, F2, F3 with respect to XYZ. नीचे आएगा with respect to UVW. Okay, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था. Okay, so we'll continue this. और आपको मैंने एक और पार्ट बोला था कि इन दिस केस सी एट द एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू यूजिंग दिस डिटर्मिनेंट. ओके, जैकोबियन की वैल्यू आप डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट कर रहे हो. एंड फॉर रियल केस इट्स इजी टू कैलकुलेट दैट डिटर्मिनेंट, बट इफ इट कंटेन द वेरिएबल्स लाइक एक्स एंड वाई अगर उसमें आ जाते हैं ना, सो इन सम केसेस इट टेक्स टाइम. ओके, इट टेक्स टाइम, या उसमें थोड़ा टाइम जाएगा आपको कैलकुलेट करने में. सो फॉर दैट वी हैव टू लर्न सम ट्रिक्स टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट. ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, वी हैव टू सेव अवर टाइम. ओके ना, क्योंकि आपको भी पता है कि मैन्युअली आप वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, बट जो आपके रेगुलर प्रोसेस है ना, फर्स्ट एलिमेंट मींस डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन माइनस साइन डिलीट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, देन प्लस साइन डिलीट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, लाइक दैट. जो आपके रेगुलर प्रोसेस है डिटर्मिनेंट की, अगर आप उस मेथड से जाते हो, ओके, तो आंसर आपको मिलने वाला है डेफिनेटली, बट इट टेक्स टाइम. ओके, इट टेक्स टाइम, उसमें थोड़ा आपका टाइम ज़्यादा जा सकता है. एंड as we have to focus more on the MCQs, so for that purpose you must understand this some tricks related with the determinants. Okay, so just let me give these tricks. Okay, just 1 minute, let me erase this. तो ये आप याद रखो. ओके, शायद आपने मैट्रिक्स में भी ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी, सो बट स्टिल आई विल रिपीट वन मोर टाइम. ओके, सो दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू ऑल दैट डिटर्मिनेंट ऑफ अपर and lower triangular matrix is actually equal to the product of principal diagonal elements. Okay, ये रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQs अगर क्रिएट करना है ना, तो ऐसे केसेस में ही आने के चांसेस ज़्यादा है. ठीक है, सो द फर्स्ट रिजल्ट इज व्हाट, if we have given the upper triangular matrix or the lower triangular matrix, then your determinant is just the product of the principal diagonal elements. Okay, this is your first result. For example, if I take any random matrix, say 1 2 3 0 4 5 0 0 6. Okay, so what is the determinant of this matrix? Sorry, it's a determinant. Yeah, what is the determinant of this matrix? 24. 24. Okay, 6 4 and 1 in तीनों का आपको प्रोडक्ट लेना है. So it's simple, but it is only for upper and lower triangular matrix, also for a diagonal matrix. ठीक है, yeah. Next, yeah, so this is also one of the important result. If any two rows or if any two rows or columns of determinant are interchange, okay, अगर आप if we interchange any two rows or any two columns of the determinant, then value of determinant is multiplied by -1. ठीक है, so for example अब इसका determinant क्या है, 24 है. ठीक है, ठीक है, अभी इसका ज़्यादा कुछ यूज आप नहीं करने वाला इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली. जो फोर्थ कंडीशन है उसका आपको यूज करना है. मतलब इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज से 10, okay, and if I interchange any two rows or any two columns, if I interchange any two rows or any two columns, then it is multiplied by -1. This is the result. ठीक है, ये भी शायद आपको पता होगा. Okay, then next is what, if all elements of row of a determinant are multiplied by some scalar, then value of the determinant is k times the given determinant. इसका सिंपल मीनिंग क्या है, you can take the elements common from रो और फ्रॉम कॉलम. डिटर्मिनेंट में आप रो वाइज और आप कॉलम वाइज एलिमेंट्स को कॉमन लेते हो. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थर्ड स्टेटमेंट. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस x x x, यहाँ पे कुछ तो 2y है, यहाँ पे कुछ तो 2y है, यहाँ पे भी कुछ तो 2y है, 3z 3z 3z. ओके, तो अगर आपको इसका क्विकली डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो क्या क्या कॉमन आ सकता है यहाँ पे. यस, क्या क्या कॉमन आ सकता है. सो फ्रॉम फर्स्ट रो, ओके, यू कैन टेक x कॉमन, क्योंकि x कॉमन दिखाई दे रहा है आपको. यू कैन टेक x कॉमन फ्रॉम सेकंड रो, यू कैन टेक यस 2y कॉमन, है ना. एंड फ्रॉम थर्ड रो यू कैन टेक 3z कॉमन. एंड व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट, देन यू विल गेट जस्ट 1 1 1 1 1 1 1 1 1. देखो कितने जल्दी आपका डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थर्ड स्टेटमेंट. ओके, इट सिंपली मीन्स व्हाट, फ्रॉम ईच कॉलम अगर कॉमन एलिमेंट मिल रहा है तो, अगर कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, मतलब अगर मैं यहाँ पे y ले रहा हूँ
तो यू कैनॉट टेक दैट एक्स कॉमन फ्रॉम दिस फर्स्ट रो, है ना. सो अगर वहां पे किसी रो में या किसी कॉलम में आपको कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ओके, सो इन दैट केस यू कैन टेक दैट एलिमेंट डायरेक्टली आउटसाइड टू दी डिटर्मिनेंट. बट ये सारी चीज आपको रो वाइज और कॉलम वाइज करनी है, तो आप देखोगे बाहर उस हिसाब से मल्टीप्लीकेशन आपका आ जाता है. ओके, सो दिस इज योर थर्ड रिजल्ट. इसका हमें यूज करना है इस टॉपिक में. ओके, इन दोनों का कुछ यूज नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. हाँ, नाउ दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट. शायद आपको ये पता नहीं होगा. ओके, बट बिफोर दिस, कैन यू टेल मी हाउ मेनी elementary operations are there that you can perform on a matrix? Yes, Two. Yeah. total how many elementary operations are there that you can perform on a matrix? टोटल कितने ऐसे ऑपरेशन है जो आप मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो? डू यू रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम योर फर्स्ट कोर्स? हाँ, what is so special about elementary transformation? Sir, the transformation we get similar matrix. Okay. Have you? So if we interchange row or column, the value of matrix remains unchanged. Okay, but you can't use this word, value of a matrix. Okay, there is special word. I'm not getting that word actually. Okay, आपको समझ में आ रहा है, but आपका थोड़ा wording proper नहीं है. What is so special about this elementary operation? This is my question. जो आपने already Magnitude. नहीं, similar matrix भी, but similar matrix की concept I don't know whether you have learned or not. Okay, two matrix are similar means what? But उतना ही deep में जाने की जरूरत नहीं. Already आपने एक concept learn की है. That whole unit is depend on only one concept. Rank. आपने वो unity इसलिए learn किया कि because of Equivalent, sir. this is one of the property that is related with the matrix. This is one of the special property that related with the matrix. And why these elementary transformation are so special? Why? Because if I use this elementary transformation, then what? So rank remains the same. Yes. This elementary transformation does not alter rank of the matrix. That is the special thing about this elementary transformation. इसलिए तो और जो मतलब आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये चीज आप नहीं कर सकते हो वहां पे, बिकॉज दोज ऑपरेशन मे चेंज द रैंक ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स. बट इफ आई यूज दिस स्पेशल एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन, सो आई विल टेल यू क्विकली. फर्स्ट ऑपरेशन था इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम. दिस इज योर फर्स्ट ऑपरेशन. सेम यू कैन राइट फॉर कॉलम. सेकंड ऑपरेशन था यू कैन मल्टीप्लाई एनी रो और एनी कॉलम बाय सम नॉन जीरो स्केलर. एंड थर्ड ऑपरेशन इज दिस ऑन आरआई दैट Ri plus k times Rj. वही मैंने यहाँ पे कंसिडर किया. दिस इज योर थर्ड एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, एंड सेम यू कैन राइट इट फॉर कॉलम ऑल्सो. ठीक है, सो दिस थ्री एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट अल्टर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये आपने ऑलरेडी लर्न किया है. एंड वन मोर प्रॉपर्टी इज रिलेटेड विद दिस one elementary transformation, as we know that this first elementary transformation change the value of the determinant. फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो रही है. बट जब आप थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो ना, सो दिस थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट अल्टर वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करते हो ना डिटरमिनेंट के ऊपर, नॉट ऑन मैट्रिक्स, ऑन डिटरमिनेंट, ओके, इन दैट केस ऑल्सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल रिमेन सेम. डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आता है. सो यूजिंग दिस यू कैन सिंप्लीफाई द डिटरमिनेंट. ठीक है, यूजिंग दिस यू कैन सिंप्लीफाई द डिटरमिनेंट. ओके, ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि रियल नंबर का जो डिटरमिनेंट आप वो कैलसी में भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो वो अगर आपको नहीं भी पता ना तो भी उसका आंसर आपको कहीं पर ना कहीं पे मिल जाएगा. बट अगर वेरिएबल के फॉर्म में डिटरमिनेंट आता है ना तो आपको मैन्युअली सॉल्व करना पड़ता है. दैट्स व्हाई इन दैट केस स्पेशली यू नीड दिस टू रिजल्ट्स. ओके, सो विल टेक वन एग्जांपल ऑन दिस, और मैं सारी चीज आपको ये क्लियर करके देता हूँ. So let us take one example. If u equal to xyz, u is a function of xyz, v is a function of xyz, w is a function of xyz, and we have to calculate the Jacobian of uvw with respect to xyz. Okay, so I think यहाँ पे शायद मैंने इससे किया होगा. Okay, but क्या डायरेक्टली भी हो सकता है. ठीक है, just let me write what is the direct value. Yeah. So can anyone tell me what is formula for this uvw with respect to xyz?
ओके, यहाँ पे इम्प्लिसिट से जाने की जरूरत है क्या आपको? इम्प्लिसिट से जाने की No, no, sir. No, sir, because already we have given this Explicit. u, v, w in terms of x, y, z. So you can refer this example just for the practice of implicit function. Okay, but and then your approach must be regular definition for explicit function. So here you have to write the derivative of ux. Here you have to write derivative of uy. Here you have to write derivative of uz. This is vx. This is vy. This is vz. This is wx. This is wy. This is wz. Let us check इसमें क्या जनरेट होता है. Okay, now u का x it is yz, with respect to y is xz, and with respect to z is xy. Okay, you can check my calculation. V का with respect to x is just a 2x, with respect to y is 2y, with respect to z is 2z, and now this is 1 1 1. Okay, now see here, ये आप अपने रेगुलर अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो अगर ये जो ट्रिक अभी जो मैंने आपको दी था, अगर आपको नहीं यूज करना है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या है, आपका जो रेगुलर अप्रोच होता है डिटरमिनेंट सॉल्व करने का, आप उस मेथड से जाके भी इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हो एंड यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट, डोंट वरी. ठीक है, बट अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है. ओके, हियर आई हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस डिटरमिनेंट. मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, सो कैन यू टेल मी विच सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल हियर? डायरेक्ट अप्रोच से तो सबको सॉल्व होने वाला है, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन इन दैट वे. अगर यह अप्रोच आपको नहीं समझ में आता तो ऑलरेडी आपके पास वो सेकंड अप्रोच है. बट व्हाट इज द ड्रॉबैक विद दैट अप्रोच? दैट मे इंक्रीज योर टाइम. ओके, कैलकुलेशन टाइम. ओके, सो या, सो एज वी नो दैट वी कैन परफॉर्म, वी कैन टेक एनी, तो दो ही ऑपरेशन बस आपको याद रखने. पहले क्या चेक करना है कि कोई कॉमन एलिमेंट आपको मिल रहा है कि नहीं. ठीक है, एंड सेकंड क्या है कि ये जो ऑपरेशन है आपका ऑन आर आई, दैट आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, using this, okay, can we take a common element or not? And then आपको कॉमन एलिमेंट बाहर ही कलेक्ट करने. तो एक तो डायरेक्टली देखो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं, या तो ये जो ऑपरेशन था ना सेकंड, क्योंकि बिकॉज दिस ऑपरेशन आल्सो डज नॉट अल्टर द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन, सॉरी, डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. ओके, सो ये भी चेक करो कि यूजिंग दिस ऑपरेशन कैन वी सिंप्लीफाई दिस. ठीक है, ओके, नाउ एनीवन, सो इट्स ओपन क्वेश्चन, क्या कर सकते हो आप यहाँ पे? Sir, C2 is C1 minus C. Okay, so what we can do on C1 that C1 minus C2. ठीक है, इतना ही नहीं, आपको ये बाद में दिखाई समझ में आ जाएगा. पहले मैं लिख लेता हूँ ऑपरेशन ऑन C2 दैट, क्योंकि C1 पे ऑलरेडी ऑपरेशन हो रहा है. ऑन C2 दैट C2 minus C3. ओके, ओके, नाउ लेट अस परफॉर्म दिस ऑपरेशन, देखते हैं क्या मिलता है आपको. सो विच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट C1 पे क्या चल रहा है, C1 minus C2. सो YZ minus XZ क्या मिलेगा, Y minus X टाइम्स Z. यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 into X minus मिलेगा 0. कम टू दिस C2 on C2 that C2 minus C3. So XZ minus XY. So I think Z minus Y times X. Then here you can take 2 common, Y minus Z. ये अगेन 0 आ जाएगा. एंड नाउ थर्ड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं लिया है मैंने, सो लेट मी राइट दैट थर्ड कॉलम एज इट इज, सॉरी, थर्ड कॉलम. ओके, इज दिस करेक्ट? ये सबको समझ में आ रहा है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? Clear. ओके, नाउ ये मतलब एट द एंड आपको कॉमन एलिमेंट ही कलेक्ट करने, तो उसके लिए मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया. नाउ क्या क्या कॉमन आ सकता है, कैन यू टेल मी दैट? Y, X minus Y. फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन ले सकते हो आप? पहले आप ये बोलो सेकंड रो से क्या कॉमन आ रहा है. सेकंड रो से 2. वाइज एंड कॉलम वाइज एलिमेंट को कॉमन लेना, ये याद रखो. तो सेकंड रो से क्या कॉमन आ रहा है, 2. ओके, तो वो मैंने बाहर कलेक्ट किया. नेक्स्ट, फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है? अभी आप बोलो कि ये y माइनस एक्स एंड x माइनस वाई है, तो इसको आप माइनस लेके भी एडजस्ट कर सकते हो ना. सो फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, X minus Y. मतलब x माइनस वाई लिखते हो ना, तो इसको आप क्या करो, माइनस साइन से एडजस्ट करो. सो फ्रॉम कॉलम आई विल टेक x माइनस वाई कॉमन, एंड फ्रॉम सेकंड कॉलम आई विल टेक y माइनस z कॉमन. Minus Z. ओके, इतना ही मिलेगा आपको. नाउ राइट डाउन द रिमेनिंग पार्ट. ओके, सो मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट, आई विल राइट हियर, आई होप इट इज विजिबल. या, तो यहाँ पे मैंने x माइनस वाई कॉमन लिया है, तो ये माइनस मुझे एडजस्ट करना होगा. तो क्या लिखना होगा यहाँ पे मुझे, व्हाट इज दिस वैल्यू? Minus. वेरी गुड, माइनस z. ये 2 भी कॉमन लिया है, सो इट इज जस्ट 1. यहाँ पे कुछ नहीं है. यहाँ पे ऑलरेडी माइनस कॉमन लिया है, सो माइनस एक्स,
it is just 1, it is 0, and it is xy, it is 2z, and it is 1. ठीक है, so let me write now here in this corner. ठीक है, so this is equal to 2 into x minus y, y minus z. अभी आप देखो ये कितना ट्रिवियल बन गया. ठीक है, क्या वैल्यू आएगी इसकी? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? ऑलरेडी दो एलिमेंट. सो इफ आई टेक फर्स्ट, ओके, दिस 1, क्या मिलेगा? ओके, लेट मी सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट हियर. मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ. माइनस जेड लिया पहला एलिमेंट, देन डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. इन ब्रैकेट यू विल गेट ओनली 1. नाउ माइनस माइनस प्लस, तो x आ जाएगा. हाँ, एंड सेकंड कॉलम तो फिर से 1 ही मिलेगा. लास्ट में प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? डिलीट फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम, तो ये दोनों 0 0 आ जाएंगे, तो ये 0. तो ये मैंने मैन्युअली डिटरमिनेंट सॉल्व किया, और आपको पता है कि ये दो एंट्री 0 है ना, तो ऑलरेडी कैलकुलेशन आपका ट्रिवियल बन जाएगा. नाउ हियर विल गेट ओनली x माइनस जेड. तो वो जो डिटरमिनेंट यहाँ पे मिल रहा है ना, दैट इज ओनली x माइनस जेड. हो गया. दिस इज योर फाइनल आंसर. आपको प्रॉब्लम तभी आएगी अगर मैं चारों ऑप्शन में ना, सेम क्वेश्चन है बट चारों ऑप्शन में इस फॉर्म में देता हूं, और अगर आप उसको मैन्युअली सॉल्व करते हो ना, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. अभी आपको रिवर्स थिंकिंग आपकी क्या चाहिए? ओके, नाउ दिस इज द ट्रिक हाउ टू हैंडल दैट एमसीक्यू. रिवर्स थिंकिंग, अगर सारे ऑप्शन में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड ऐसे साइक्लिक फॉर्म में टर्म दिखाई दे रहे हैं ना, तो आपको वहीं पे क्लिक होना चाहिए कि x माइनस वाई आंसर आ रहा है, मतलब x माइनस वाई कैसे ना कैसे कॉमन आ सकता है. y माइनस जेड लिखा है, मतलब y माइनस जेड भी कैसे ना कैसे कॉमन आ सकता है. ठीक है, ऐसे थॉट से आपको उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होगा. क्योंकि अगर आप मैन्युअली करते हो ना, अगर मैं चार ऑप्शन इस पर्टिकुलर फॉर्म में देता हूं, 2 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, इसको प्लस माइनस करके चार ऑप्शन अगर मैं क्रिएट कर देता हूं ना, तब आपको प्रॉब्लम होगी मैनुअल अप्रोच से. क्योंकि आपका अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हो ना, कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड आंसर मिल जाएगा, बट दैट ऑल्सो कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू दिस फॉर्म, बट वो आपको इमीडिएटली गेस नहीं होगा. इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस, आप ट्राई करके भी चेक कर सकते हो. ठीक है, तो ऑप्शन से देखो कि डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, यूजिंग दिस रिजल्ट्स. ऑप्शन में देखो, अगर ऑप्शन इस फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब x माइनस वाई कॉमन आ सकता है, y माइनस जेड कॉमन आ सकता है, वो भी आपको गेस हो रहा है. x x यहाँ पे आ रहा है, ओके सॉरी, हाँ यहाँ पे z z कॉमन, मतलब x माइनस वाई यहाँ से जनरेट होगा c1 इंटू c1 माइनस c2 से. तो एमसीक्यूज के लिए तो ये और ट्रिवियल बन जाता है, क्योंकि एमसीक्यूज के ऑप्शन से ही आपको समझ में आता है कि ऊपर मुझे क्या कैलकुलेशन करना है. बट अगेन दिस इज द ऑप्शनल मेथड. ओके, बट मे चांसेस ऑल्सो देयर कि इसके ऊपर भी एग्जाम्पल आपको आ सकते हैं. ठीक है, फाइनल एग्जाम में तो आपको यह भी मेथड लर्न करनी है, एंड ट्राई टू सॉल्व द गिवन डिटरमिनेंट यूजिंग दिस टू प्रॉपर्टीज. आप ट्राई करो. रेगुलर अप्रोच तो सबको आ रहा है, एंड वर्स्ट केस में आप वो यूज ही करने वाले हो, बट जितने भी अभी तक हमने डिटरमिनेंट लर्न किए ना, उनमें भी ये चीजें आप ट्राई करके देखो. R1, this third elementary operation, and try to collect the common terms. Okay, is this clear to everyone? समझ में आ गया सबको इक्वेशन? Yes, sir. Okay, and you can refer this, but इसकी जरूरत नहीं है. ये जो सोल्यूशन दिया है, no need to refer this. वही उन्होंने किया है, बट ये उन्होंने लेंथी प्रोसेस से किया है. So this is just to practice that implicit function. ओके, these are some examples. I think ये जो ट्रिक मैंने आपको दी थी ना, ये ट्रिक आपको इस थर्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम में चाहिए. अब देखो दोनों डिटरमिनेंट में है ना, दोनों डिटरमिनेंट में वो साइक्लिक फॉर्म में आ रहा है, मतलब x माइनस वाई कॉमन लेके एडजस्ट करना होगा, y माइनस जेड कॉमन लेके एडजस्ट करना होगा, नीचे भी u माइनस वी एंड v माइनस डब्ल्यू. तो आप देखो उसके लिए आपको क्या ऑपरेशन करने. तो जो आज के लेक्चर में मैंने लिया है, सो फॉर प्रैक्टिस यू कैन रेफर दिस थर्ड एग्जाम्पल. बाकी एग्जाम्पल तो ट्रिवियल है. ठीक है, या इसके लिए भी एक नोट मैंने दिया है, दिस fourth example. You can sorry, I don't know whether it is there or not. Yeah, but that note is there. Right now if you want you can skip this. अभी तो आप इसको skip करके सॉल्व करो. ठीक है, just try to complete this three examples. सारे होमवर्क के क्वेश्चन में आपके चेक करने वाला, so don't take it casually. आपको सॉल्व करके रखना है. ठीक है, so I will give the proper schedule where you have to show you all these solutions. ट्यूटोरियल सेशन में वही करना है हमें, सो सॉल्व करके रखो आप, डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट एप्लीकेशन, यू कैन से जैक्यूबेन आपने कैलकुलेट किया था, जिसका यूज आप इमीडिएटली इस सब्जेक्ट में ही करने वाले हो इन मल्टीपल इंटीग्रल टॉपिक. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव. ओके, सो अब ये पार्शियल डेरिवेटिव कंसेप्ट डिफिकल्ट कहाँ पे होगी? फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू दिस टू एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम
plus u plus v equal to 0 and then x plus y plus u cube plus v cube equal to 0 if I give you this two equation. ठीक है, और क्वेश्चन में आपको क्या देता हूँ, जस्ट कैलकुलेट डेबा यू बाय डेबा वाई. ठीक है, बट यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना तभी इजी होगा जब आप u को इन टर्म्स ऑफ x एंड y कैलकुलेट करते हो. ठीक है, दिस इज अगर जो आपका रेगुलर अप्रोच है ना, उस रेगुलर अप्रोच के लिए मतलब टू फाइंड दिस वैल्यू डेबा यू बाय डेबा वाई यू हैव टू एक्सप्रेस u इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तभी ये पॉसिबल होगा. आप उसको y से डिफरेंशिएट करोगे एंड आपका x आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा. सिमिलरली इफ आई वांट टू कैलकुलेट से v विद रिस्पेक्ट टू y, तो मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू एक्सप्रेस v इन टर्म्स ऑफ x एंड y. I have to express v using these two equation. I have to express v in terms of x and y. Then I can differentiate v with respect to y, and at that time I have to keep this x constant. ये समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? If I have given this to implicit function, let us assume this is your given question. और मेरा क्वेश्चन क्या था? Using this, just find this. So is it possible with our regular approach, जो आपने यूनिट 1 में देखा था, उस लॉजिक से यहाँ पे करना पॉसिबल है क्या? जस्ट टेल मी यस और नो, इज इट पॉसिबल? क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है कि व्हाई वी नीड टू लर्न दिस एप्लीकेशन. ओके, अगर आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाता है और यूजिंग दिस इम्प्लिसिट फंक्शन अगर मैं आपको पूछता हूँ कि कैलकुलेट डेबा यू बाय डेबा वाई, तो आपको क्या करना होगा? कैन वी डायरेक्टली कैलकुलेट फ्रॉम दिस टू इक्वेशन? पॉसिबल है क्या? दोनों इक्वेशन का यूज करके डेबा यू बाय डेबा वाई मिलने वाला है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, कि जब भी आपको डेबा यू बाय डेबा वाई कैलकुलेट करना है, रिक्वायरमेंट क्या है? दैट यू मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. ये तभी कैलकुलेट होगा जब आप यू को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सप्रेस करते हो. ठीक है, तभी आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. शायद आपने ये थोड़ा बहुत इनिशियल लेक्चर्स में देखा होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट होता है. इफ यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट डेबा यू बाय डेबा एक्स एंड डेबा यू बाय डेबा वाई. So these are the conditions to calculate those partial derivative. You have to express that u in terms of x and y. ठीक है, तो अगर आपको रेगुलर अप्रोच से जाना है तो ये कन्वर्जन आपको करना होगा, मतलब सेकंड में भी v को इन टर्म्स ऑफ x एंड y तभी पॉसिबल है. ठीक है, ये समझ में आ रहा है स्टेटमेंट मेरा सबको? इज दिस? Yes. ओके, तो सो अब ये तो क्लियर हो गया कि जो यूनिट मतलब मुझे क्या कहना है कि अगर इस टॉपिक के ऊपर मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि आपको वहां पे ये नहीं समझ में आ गया कि कौन से मेथड से करना है. ठीक है, तो अगर इस टॉपिक के ऊपर मैं क्वेश्चन देता हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, मतलब मुझे जैकोबियन का यूज करके. ओके, सो हियर एक्चुअली वी हैव टू यूज जैकोबियन टू कैलकुलेट दिस पार्शियल डेरिवेटिव. ये लिंक में जा रहा है, मतलब आपने पहले जैकोबियन लर्न किया. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव. आप वही जैकोबियन का यूज करके आप पार्शियल डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करने वाले हो. दैट इज योर सेकंड एप्लीकेशन. ठीक है, और यू कैन सिंपली से दैट वन मोर, यू कैन सिंपली से दैट एप्लीकेशन ऑफ जैकोबियन. ठीक है, एंड एट देन इट बिकम द एप्लीकेशन ऑफ, अभी पार्शियल डेरिवेटिव का तो नहीं बोल सकते क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो. दिस यू कैन से, दिस यू कैन ट्रीट एज अ एप्लीकेशन ऑफ जैकोबियन. ओके, एंड एक और एप्लीकेशन आपका लास्ट में भी आने वाला है. तो यहाँ पे सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये कन्वर्जन करना पॉसिबल नहीं है, and it is not that much trivial. In some cases it is impossible. So it is not easy to convert u in terms of x and y using this two equation and v in terms of x and y using this two equation. Okay, so what we'll do, we'll use the Jacobian concept to calculate this partial derivatives. Okay, so I will give you now those formulas. Okay, so वही था. Let us consider this is your first equation, first implicit function. Let us consider this as your second implicit function, the two implicit function, and again I will tell you a trick how to remember this formula. ठीक है, and if I want to calculate डेबा u by डेबा x. ठीक है, so this here on RHS you can see this Jacobian part. तो ये Jacobian से आप कैलकुलेट कर सकते हो. इसका प्रूफ बुक में, बट इट्स अ लेंथी प्रूफ, so I cannot complete that proof in this theory lectures. Okay, so you can refer from a book, or maybe shortly you will get that course manual. So from that also you can refer this proof, या आप कहीं पे भी डाल सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा. इट्स मतलब रिजल्ट्स आर ट्रिवियल और आपको प्रूफ भी समझ में आ जाएगा. ओके, सो नाउ आई विल गिव अ ट्रिक दैट हाउ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ठीक है, अभी मुझे पहले यहाँ पे ये बोलो कि यहाँ पे कौन से दो सेट गिवन है, सेट ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि आपको पता है देयर आर ऑलवेज टू सेट, वन इज डिपेंडेंट सेट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट सेट. बट ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का रोल आप चेंज कर सकते हो. बट कौन से दो सेट यहाँ पे प्रेजेंट है? वन सेट इज एक्स एंड वाई एंड सेकंड सेट इज यू एंड वी.
ये नोटेशन हमने फिक्स किया स्टार्टिंग से ही। ओके, राइट नाउ वी डोंट नो कि इनमें से कौन सा सेट डिपेंडेंट का है और कौन सा सेट इंडिपेंडेंट का है, बट ये तो क्लियर है कि यहाँ पे दो सेट है, एक्स एंड वाई का एक सेट है एंड यू एंड वी का एक सेट है। इनमें से एक सेट डिपेंडेंट होगा, डिपेंड ऑन द गिवन क्वेश्चन। सी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टोटली डिपेंड ऑन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, तो वो रोल आप चेंज कर सकते हो। तो ये पहले आप फिक्स रखो, मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर मैं किसी एक वेरिएबल को डिपेंडेंट बोलता हूँ तो वो एंड तक डिपेंडेंट ही रहेगा, वी कैन चेंज दैट रोल आल्सो। ओके, सो इनमें से एक सेट डिपेंडेंट का होगा, एक सेट इंडिपेंडेंट का होगा, तो बट उससे हमें मतलब वी डोंट नीड दैट पार्ट। आपको बस ये याद रखना कि यहाँ पे दो सेट है। अभी आप देखो फॉर्मूला कैसे लिखना है। या जस्ट लेट मी इरेज दिस। इफ आई वांट टू कैलकुलेट डा बाय यू बाय डा बाय एक्स, अब इन सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स में, पार्शियल डेरिवेटिव्स विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग जैकोबियन, उन सारे फॉर्मूलेज में माइनस साइन कंपलसरी है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है अभी आपका, सारे केसेस में माइनस साइन कंपलसरी है। यहाँ पे बस क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू राइट द डिनोमिनेटर टर्म। वो क्या होता है, जैकोबियन ऑफ f1 f2 विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर सेट, विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर सेट। अभी न्यूमरेटर में u आ रहा है, तो u का सेट कौन सा है, u एंड v। तो अगर यहाँ पे v भी आ जाता ना तो भी मैं नीचे क्या लिखने वाला हूं, u एंड v, क्योंकि u एंड v दोनों कौन से सेट में आते हैं, u एंड v के सेट में आते हैं, बिकॉज u बिलोंग्स टू दिस, ऑल्सो v बिलोंग्स टू दिस। ओके, तो ऊपर जो वेरिएबल प्रेजेंट है, ओके, वो जिस सेट में आता है वो सेट आपको नीचे लिखना है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्या करना है, नाउ डा बाय यू बाय डा बाय एक्स, तो आप इसको कैसे याद रखो, u को रिप्लेस करो x से एंड राइट डाउन दिस सेम टर्म इन न्यूमरेटर। दिस इज जस्ट अ ट्रिक, this is, I'm not giving you any mathematical approach, this is just a trick to remember this formula, that proof is there. Okay, अभी क्या करना है, write down the same term in numerator, write down the same term in numerator and just replace u by x। ऊपर u है नीचे x है, तो u को x से रिप्लेस करना है। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, write down the same term in numerator, so just replace u by x। तो अभी मैं u नहीं लिख रहा, v लिख देता हूँ, और मुझे क्या करना है, let me write in other color so that you can u के जगह पे x लिखना है, इतना ही चेंज करना है। ठीक है, तो यही टर्म आपको ऊपर फिर से लिखना है, जस्ट रिप्लेस u बाय x। ओके, नाउ आई विल गिव यू अ रैंडम क्वेश्चन एंड आप सब को मुझे वो फॉर्मूला बोलना है, तब समझ में आएगा कि क्लियर हुआ है कि नहीं। लेट मी चेंज द रोल, डा बाय y बाय डा बाय v। ओके, कैन एनीवन टेल मी दिस फॉर्मूला? एनीवन? ये कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, माइनस देना है पहले। ओके, नाउ टेल मी f1 f2 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x एंड y, क्योंकि यहाँ पे ऊपर y आ रहा है एंड y बिलोंग्स टू दिस सेट x एंड y, तो नीचे xy आएगा और ऊपर क्या आएगा, राइट डाउन द सेम टर्म एज इट इज f1 f2। क्या चेंज करना है, बोलो? यस, x की जगह v, नहीं, y की जगह पे ऊपर जो है उसको रिप्लेस करना है, तो y की जगह पे v लिखना है। y की जगह पे v मतलब x, v। ठीक है, u की जगह पे x लिखना है, u की जगह पे x, y की जगह पे v। ये था आपका फॉर्मूला। सो दिस इज द ट्रिक। तो इससे क्या होगा, बिकॉज देर आर यूजिंग दिस टू इक्वेशन, हियर यू कैन कैलकुलेट 4 पॉसिबल पार्शियल डेरिवेटिव्स। वन इज दिस डा बाय u बाय डा बाय x, सेकंड इज डा बाय u बाय डा बाय y, 4 नहीं उससे भी ज्यादा रहेंगे, सॉरी, डा बाय u बाय डा बाय y। नेक्स्ट इज डा बाय v बाय डा बाय x, डा बाय v बाय डा बाय y। इनको ये रिवर्स कर सकते हो, डा बाय x बाय डा बाय u, डा बाय y बाय डा बाय u, डा बाय x बाय डा बाय v, डा बाय y बाय डा बाय। सो अराउंड देयर आर 8 पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब इतने सारे फॉर्मूले याद रखने से अच्छा है आप उसकी ट्रिक ही याद रखो कि कैसे वो फॉर्मूला आपको जनरेट करना है। ओके, इज दिस क्लियर नाउ? yes sir, एंड दोज फ्यू फॉर्मूलेज आर हियर। ठीक है, अभी एक, नाउ दिस वेरिएबल इज नॉट स्पेशल, कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है, बट स्टिल हियर आई हैव नोटेड दिस 4 रिजल्ट्स, बट आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट ट्रिक। नाउ सेम लॉजिक यू हैव टू कैरी फॉर द 3 इक्वेशंस। ओके, मींस 3 डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे भी 2 सेट है, एक्स वाई जेड का एक सेट है एंड यू वी डब्ल्यू का सेट है। तो एक मैं दिखा देता हूँ आपको, या यू कैन चेक दिस, डा बाय यू बाय डा बाय एक्स, यू आपका इस सेट में आता है, सो नीचे आ जाएगा यू वी डब्ल्यू और यू की जगह पे एक्स रखना है, ऊपर यू की जगह पे एक्स, बाकी चीजें एज इट इज। एंड हियर एज देयर आर 3 functions, you have to take a Jacobian of f1 f2 f3 with respect to u by w, so it is a 3 by 3 determinant. Okay, now let us take some examples on this. Okay, so here we have given u square plus x v square minus uxy is equal to 0 and
वी स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2uv प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 0। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, डा बाई यू बाय डा बाई एक्स। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है कि यूनिट 2 का क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि नहीं तो आप क्या करोगे, यूनिट 1 के लिए आप डायरेक्ट स्टार्ट करोगे डिफरेंशिएट करने की, मतलब इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड आप ये डा बाई यू बाय डा बाई एक्स कैलकुलेट भी करोगे, बट विच इज टोटली रॉन्ग। सो वट एवर इक्वेशन इज देयर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू इक्वेशन। तो ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे implicit फॉर्म गिवन है एंड वी हैव गिवन टू डिफरेंट इक्वेशंस, therefore this is the problem on our second unit, okay, application of partial differential equation. So in solution, let us first denote that first equation by f1. So this is your first equation. Denote that second equation by f2. This is your second equation. Now write down the formula for da by u by da by x. So da by u by da by x is equal to minus sign and in the denominator Jacobian of f1 f2 with respect to what, u आपका कौन से सेट में आता है, u and v के सेट में आता है, तो नीचे आएगा u into v, राइट डाउन द सेम टर्म इन न्यूमरेटर f1 f2, जस्ट रिप्लेस u by x, तो नीचे आ जाएगा x, v, ठीक है। सो इट इज इजी नाउ। सो दिस इज द फॉर्मूला जैकोबियन ऑफ f1 f2 विद रिस्पेक्ट टू u v, एज u बिलोंग्स टू दिस सेट, रिवर्स होता है ये, एंड बस क्या करो ऊपर राइट डाउन द सेम टर्म एज इट इज, जस्ट रिप्लेस u by x। दिस इज द ट्रिक, दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स नहीं है। ओके, एंड नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड जस्ट राइट डाउन हियर, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम अ न्यूमरेटर व्हिच इज f1 f2 विद रिस्पेक्ट टू xv, ठीक है। तो लेट मी राइट दिस नाउ डायरेक्टली। हाँ, तो पहले क्या करना है, x एंड v वेरिएबल है, सो डिफरेंशिएट f1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, f1 विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो। Tell me at least this derivatives. Let me repeat. v square minus uy. Very good. V square minus uy. Okay. Now f1 with respect to v. 2x. 2xv. Okay. f2 with respect to x. f2 with respect to x. Yes. f2 minus y square. Very good. f2 with respect to v. 2v 2v plus 2u ना, ठीक है। अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसमें कोई 2/2 के डिटरमिनेंट में वो जो मैंने डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज आपको बोले थे वो यूज नहीं करने, क्योंकि 2/2 का वैसे भी ट्रिवियल है कैलकुलेट करना, दिस माइनस दिस, ओके, सो नो नीड टू यूज दोज प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो दिस डेरिवेटिव्स आर देयर, ओके, एंड यू कैन जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड यू विल गेट दैट फाइनल आंसर, ठीक है। जितना हो रहा है उतना सिंप्लीफिकेशन करो, नहीं हो रहा है तो आप वैसे भी रख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर न्यूमरेटर वैल्यू। नाउ लेट अस कैलकुलेट डिनोमिनेटर पार्ट, सो व्हिच इज f1 f2 with respect to uv, ठीक है। सो हियर ऑन कॉर्नर हियर आई नोटेड दोज f1 एंड f2 सो दैट यू कैन रेफर फ्रॉम दिस, ठीक है। सो अभी मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। सो f1 का विद रिस्पेक्ट टू u इज 2u माइनस xy, f1 का विद रिस्पेक्ट टू v it is just 2xv, f2 का with respect to u is 2v, sorry, with respect to u na, so it is 2v plus 2u, okay, and with respect to v it is just 2u and then 2v, correct। now just do the cross product that you will get this, ठीक है। जितना हो रहा उतना simplify करो, otherwise you can keep this as it is। now this is the value of denominator, लेंदी आ रहा है, and you can write that final value da by u by da by x is equal to minus times numerator upon denominator, ठीक है। इतना ट्रिवियल है, तो इसमें भी बस फॉर्मूला चेंज हो रहा है, कैलकुलेशन, लॉजिक, मेथड, सारी चीजें वही रिपीटेशन है, ठीक है। सो अगेन इट इज जस्ट द रिपीटेशन ऑफ ऑल दोज प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको बोला था कि शायद मैंने सर्कल करके दिया था, हियर यू कैन ट्राई दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो वो आई थिंक यही एग्जाम्पल है वो, ठीक है। सो सेम एग्जांपल्स जैकोबियन के सेम क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहे हैं, बट यहाँ पे आप उन्होंने क्या बोला है, हियर जस्ट कैलकुलेट पार्शियल डेरिवेटिव डा बाय यू बाय डा बाय एक्स। सो अगेन हियर लेट अस डिनोट दिस फर्स्ट एज f1। अभी यहाँ पे क्या किया है, सीक्वेंस क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट किया है। मैंने आपको पहले बोला था कि जिस सीक्वेंस में आप सबट्रैक्ट कर रहे हो तीनों इक्वेशन में सेम रखना है, मतलब अगर आपने f1 आपने ये लिया है, f1 अगर आपने ये लिया है x माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, तो आगे भी क्या आएगा y माइनस यू स्क्वायर दिस एंड z माइनस यू क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब, सेम सीक्वेंस रखो। यहाँ पे रिवर्स इसलिए किया है
क्योंकि क्या होता है जब मैं राइट साइड RHS में अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सो इन दैट केस हियर यू कैन जनरेट 3 माइनस साइन, जितने माइनस साइन आ जाएंगे उतना आपको पता है कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है। जस्ट टू अवॉइड दिस माइनस साइन, यहाँ पे क्या किया है, LHS को सब्ट्रैक्ट करो। सो इट अगेन डिपेंड ऑन यू कि आपको LHS से सब्ट्रैक्ट करना है या RHS से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड दिस माइनस साइन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने राइट साइड में शिफ्ट किया, ओके, और यहाँ पे भी y को राइट साइड में शिफ्ट करो, यहाँ पे भी z को राइट साइड में शिफ्ट करो। सो आई थिंक यू विल गेट दिस, f1 f2 इज दिस एंड f3 इज दिस, ओके। नाउ लेट अस राइट द फार्मूला फॉर डे बाय u बाय डे बाय x। सो डे बाय u बाय डे बाय x इज, आपको पता है u आपका UVW के सेट में आता है, तो नीचे f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू UVW, एंड ऑन न्यूमरेटर जस्ट रिप्लेस u बाय x, just replace u by x, okay। now let us calculate one by one, so let us write the numerator। यहाँ पे इन डिटेल में उन्होंने फॉर्मूला दिया। अभी यहाँ पे थोड़ा केयरफुली कैलकुलेशन करो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल देखो क्या है, पहले x से करना है, उसके बाद v से करना है, उसके बाद w से करना है। सो प्लीज केयरफुल विद दिस, नहीं तो गलती से आप u से करोगे यहाँ पे, क्योंकि u की जगह पे x यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो नाउ डिफरेंशिएट f1, सो लेट मी जस्ट गिव दोज वैल्यूज हियर, या सो डिफरेंशिएट f1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ रहा है, -1, विद रिस्पेक्ट टू v क्या आ रहा है, 1, विद रिस्पेक्ट टू w क्या आ रहा है, 1। सो दिस इज योर फर्स्ट रो। f2 पे विद रिस्पेक्ट टू x है ही नहीं तो 0, विद रिस्पेक्ट टू v इट इज 2v, विद रिस्पेक्ट टू w इट इज जस्ट 2w। फॉर f3 विद रिस्पेक्ट टू x, सो x इज नॉट देयर, सो इट इज 0, विद रिस्पेक्ट टू v इट इज 3v स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू w इज 3w स्क्वायर, ओके। नाउ इसके आगे आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन, ये वैसे भी ट्रिवियल है, बट क्या सिंप्लीफिकेशन इसमें पॉसिबल है, कैन एनीवन टेल मी दैट? नहीं है पॉसिबल ना, नहीं आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हो, ओके। यहाँ पे है या नहीं, वैसे भी इतना डिफिकल्ट होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 0 आ रहा है, सो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस। सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकता है यहाँ पे, यू कैन सब्ट्रैक्ट C2 माइनस C3 C2 के ऊपर, सो v माइनस w कॉमन आ सकता है, बट उससे भी बेटर है कि आप डायरेक्टली सॉल्व करो। सो अगेन दिस डिसीजन इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसे करना है, जो अप्रोच आपको सिंपल लगता है आप उस अप्रोच से सॉल्व करो। बट अगर जीरो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ना आपको डिटरमिनेंट में, अगर नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है ना, सो इट्स बेटर टू सॉल्व दैट डिटरमिनेंट डायरेक्टली सॉल्व करके आप उसको कंप्लीट करो, ओके। सर 2 आणि 3 तो कॉमन शकतो ना? यस 2 आणि 3 कॉमन ही शकतो ना? 2 0 हाँ यस फ्रॉम सेकंड यू कैन टेक 2 कॉमन, फ्रॉम थर्ड यू कैन टेक 3 कॉमन, तो 6 बाहर आने वाला है, ठीक है, हाँ यस दैट यू कैन टेक, ओके। और यहाँ पे एक और ऑपरेशन है, जस्ट टू प्रैक्टिस दिस, आप C2 पे C2 माइनस C3 भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इससे भी ये जल्दी ये डायरेक्टली इस फॉर्म में दिखाई देगा आपको, थोड़ा बहुत देखते हैं। अब ये क्या आ रहा है, यू कैन टेक ये टर्म कॉमन आ जाएगा, v माइनस w, आपको मैंने बोला था ये पहले। सो v माइनस w इन ब्रैकेट यू विल गेट 6wv, ठीक है, ये होता, दिस इज योर न्यूमरेटर। नाउ लेट अस कैलकुलेट डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फॉर दिस हियर आई कंसीडर ऑल दिस f1 f2 f3 अगेन, ठीक है, एंड नाउ f1 का विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू v, विद रिस्पेक्ट टू w, तो 1 1 1 ही आएंगे। f2 का विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू v, विद रिस्पेक्ट टू w, f3 का विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू v, विद रिस्पेक्ट टू w। हाँ, नाउ दिस इज called as a special determinant. This is a general information. This is not a part of your syllabus. Okay. So this is general information. This determinant is called as cyclic determinant. ऐसे आपको समझ में आएगा. You can directly remember this for a MCQ purpose also. So this is a special determinant. 1 u square, 1 v square, 1 w square. आप देखो cyclic form में आ रहा है. 1 फिर u की पावर 0, u की पावर 1, u की पावर 2, v की पावर 0, v की पावर 1, v की पावर 2. ये रो वाइज भी चलेगा. हाँ, w की पावर 0, w की पावर 1, w की पावर 2. इसका आंसर हमेशा साइक्लिक फॉर्म में आता है. सो लेट मी शो यू दैट आंसर फर्स्ट. ये अब देखो साइक्लिक वे में आता है इसका आंसर, मतलब v माइनस यू. ओके, just 1 minute. If I take this minus from here, then u minus w. ओके, एक माइनस लेके वो साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, v माइनस यू, मतलब मुझे क्या बोलना कि वही वेरिएबल रिपीट करना है. सो विच इज इक्वल टू 6. जस्ट लेट मी राइट दिस. u माइनस वी लिख लेता हूँ पहले में. ठीक है, u माइनस वी की वजह से ये इसको मैंने रिवर्स किया तो एक माइनस साइन आ जाएगा. जस्ट लेट मी चेक. u माइनस वी, v माइनस w. अभी v माइनस w पे नहीं है तो एक और माइनस साइन आने वाला है.
ठीक है। एंड नेक्स्ट इज W माइनस क्या आ जाएगा, U माइनस V माइनस W माइनस U। अभी W माइनस U है क्या है, तो ये क्या आने वाला है, प्लस ही होगा, करेक्ट। समझ में आ रहा है, दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वैल्यू। इज दिस क्लियर? Yes, yes, sir. किसी को डाउट है तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे मतलब इस सीक्वेंस में याद रखने से अच्छा क्या आप डायरेक्टली इसमें याद रखो ना, पहला वेरिएबल U था, नेक्स्ट V था, नेक्स्ट W था, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो। कॉमन के एलिमेंट्स बाहर लेके आ जाओ, 2 आने वाला है, 6 आने वाला है, दिस इज द साइक्लिक डिटर्मिनेंट एंड हुज आंसर इज U माइनस V माइनस W माइनस U। हो गया, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एंड रीजन मैंने ऑलरेडी आपको ये एक्सप्लेन किया था प्रीवियस, सॉरी हाँ इस फॉर्म में नहीं था, बट यू कैन यूज दैट सेम लॉजिक। ओके, C2 के ऊपर या C1 C2 कोई भी 2 कॉलम के ऊपर ऑपरेशन करना है, तो C2 माइनस C3 एंड C3 माइनस C1 पे क्या किया इन्होंने, सॉरी C2 पे क्या किया, C2 माइनस C3 एंड C3 पे C3 माइनस C1। ठीक है, लेट इट बी, कोई भी कर सकते हो आप। फिर यहाँ पे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर में से आपको पता है रिजल्ट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज A प्लस B एंड A माइनस B। तो फ्रॉम दिस यू कैन टेक दैट A माइनस B कॉमन, यहाँ पे A प्लस B रहेगा। ठीक है, एंड नाउ यू कैन सॉल्व दिस डिटरमिनेंट, क्योंकि 2 एलिमेंट्स आपके 0 हो चुके। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करना ट्रिवियल है। ठीक है, ओके, नाउ साइड बाय साइड यू कैन पुट योर रोल नंबर फॉर द अटेंडेंस। सो एट द एंड you can remember, it's better to remember this result directly. I just give you, if you want you can take a screenshot, you can, or you can refer this recording also। 1y square, ये मेरा सजेशन होगा कि आप ये याद ही रखो, that saves your time and it's a famous determinant, so it is always equal to x minus y minus z minus x। क्योंकि अगर कोई एग्जांपल आपको एमसीक्यू में आ भी जाता है, सो इट डिपेंड ऑन दिस साइक्लिक फॉर्म ओनली। ठीक है, ओके, so without solving also you can write this, and if you want to solve you can refer this steps, C2 minus C3 और C3 minus या C1 minus C2, आप अपने सेम लॉजिक से भी जा सकते हो, C1 minus C2 और C2 के ऊपर C2 minus C3, that is also possible। okay, then this is your final answer। okay, so I think here we need to stop।